to start a new chapter, continuity. Geometric interpretation of continuity. If function is continuous in an interval, geometrically means that graph of the function in that interval has no breaks or jumps. Means a continuous function in the given interval, graph of continuous function in the given interval has no breaks or jumps. Means graph is continuous. Otherwise the function is discontinuous function. Graphically, for example, this is a graph between x and y axis, and this graph is a continuous graph. There is no break. For example, if the graph has some break, then the function is discontinuous. But the graph is a continuous means there is no break in the graph, so that's why this graph is a function of continuous in the given interval. For example, interval b and c. So in the interval b and c, the graph of given function is continuous. This is a continuous function. Now this is the graph of discontinuous function. For example, there is a break. So that's why in the given interval b and c, the graph is discontinuous because there is a break in the graph between given interval. So next, definition of continuity of a function at a point. At a point, a real function f is defined by y is equal to fx is said to be continuous at a belongs to real if all the following conditions are satisfied. So conditions, if f is defined at a is an element of the domain of the function. अगर स्टूडेंट फंक्शन f किसी पॉइंट पे डिफाइन है तो वो जो एलिमेंट है, जो ये वाला एलिमेंट है, वो इस फंक्शन की डोमेन के अंदर आना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट, तभी वो फंक्शन आपका उस पॉइंट पे डिफाइन होगा, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा. फॉर एग्जांपल, लिमिट x अप्रोचेस a, fx एग्जिस्ट फाइनाइटली and limit x approaches a plus means a से थोड़ा सा ज्यादा, फंक्शन fx उसको बोलेंगे राइट हैंड फंक्शन, एंड दिस इज ए लिमिट x approaches माइनस a से थोड़ा सा कम फंक्शन लेफ्ट हैंड. अगर ये एग्जिस्ट करेंगे, बोथ एग्जिस्ट फाइनाइटली एंड आर इक्वल, मींस इनके आंसर्स क्या आने चाहिए, इक्वल एग्जिस्ट भी करने चाहिए और आंसर इक्वल भी होने चाहिए. देन आपका फंक्शन क्या होगा, इस ए पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा. सो इफ एट लीस्ट वन ऑफ द अबव 3 कंडीशंस इज वायलेटेड, अगर एक भी कंडीशन वायलेट हो जाती है तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस एट दैट पॉइंट. दिस बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन. नाउ रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी. फॉर एग्जांपल, इट्स अ ग्राफ. नाउ there is a break in the graph in the given interval. For example, c, b, a. So limit x approaches a plus. So limit x approaches a does not exist. Second, fx is not defined at x is equal to b. fx at x is equal to b पे define नहीं हो रहा है. Limit x approaches c is not equal to f of c because यहां पे क्या आया, ब्रेक आई है. सो ये रीजंस हैं डिसकंटिन्यूस होने के. एक तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दूसरा फंक्शन डिफाइन नहीं है किसी पॉइंट पे, और तीसरा लिमिट x approaches c is not equal to fc. So in all the cases shown above, geometrically the graph of function will exhibit a break at the point of discussion. ठीक है स्टूडेंट, ग्राफ में क्या है, ब्रेक. So the graph shows above is discontinuous at x is equal to a, b and c. तो क्या होगा, फंक्शन क्या है, discontinuous function. So which type of discontinuity?
नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फर्स्ट काइंड। नॉन रिमूवेबल मतलब हम उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। एंड आल्सो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, अगर हमने उस कॉन्टिन्यूटी को रिमूव कर दिया तो अगर हमने डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, रिमूवेबल एंड नॉन रिमूवेबल। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। नाउ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट, limit x approaches a fx necessarily exist कर रहा है फंक्शन, बट इज ईदर नॉट इक्वल टू एफ ए, लेकिन एफ ए के बराबर नहीं है। एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन एफ ए के बराबर नहीं है, और एफ ए इज नॉट डिफाइंड। इन दिस केस इट इज पॉसिबल टू मेक द फंक्शन कॉन्टिन्यूस बाय रीडिफाइनिंग द फंक्शन। तो हम फंक्शन को वापिस रीडिफाइन कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये x माइनस 1, लिमिट x अप्रोचेज 1। अब स्टूडेंट ये क्या है, अगर हम 1 पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 तो ये नीचे क्या आ जाएगा, 0, और नीचे 0 डिफाइन नहीं है, कोई भी फंक्शन 1/0 नॉट एग्जिस्ट। चाहे ऊपर 0 आ रहा है लेकिन नीचे 0 नहीं आना चाहिए, तो ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस। अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इस कॉन्टिन्यूटी को इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर बना लिया, x माइनस 1 x प्लस 1, और ये x माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, x प्लस 1। अब ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। 1 + 1 इज इक्वल टू 2, तो हमने कॉन्टिन्यूटी को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो इस टाइप को क्या बोलेंगे, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। हमने उसको रीडिफाइन किया फंक्शन को। सो लिमिट x अप्रोचेज ए fx इज इक्वल टू एफ ए। फॉर एग्जाम्पल वही क्वेश्चन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर x माइनस 1, x नॉट इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन है, और इक्वल टू 1 पे क्या है, 2.5। मैं आपको करके बता देता हूं स्टूडेंट। सो नॉट इक्वल टू 1 पे मीन्स 1 प्लस पे। 1 प्लस पे क्या फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 1, ये मैंने अभी आपको फैक्टर करके बता दिए। क्या आएगा आंसर इसका, x प्लस 1 और 1 प्लस 1, क्या आंसर आ गया 2। लिमिट x अप्रोचेज 1 नेगेटिव पे भी, क्योंकि नॉट इक्वल टू 1 पे ये वाला फंक्शन है, मींस 1 से ज्यादा या 1 से कम। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर x माइनस 1, इसके फिर से फैक्टर बनाया, आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस 1, आंसर क्या आ गया 2। ये तो बराबर आ गया स्टूडेंट, लेकिन हमें गिवन क्या है, लिमिट x अप्रोचेज 1 पे इक्वल टू 1 पे, fx का आंसर क्या है 2.5। हमने फंक्शन को डिफाइन तो कर दिया है लेकिन ये बराबर नहीं आए, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन। डिफाइन कर दिया हमने, ठीक है स्टूडेंट, लेकिन वो fa के बराबर नहीं आया, मींस f1 के बराबर नहीं आया, बिकॉज यहां पे f(1) क्या है 2.5। ठीक है स्टूडेंट। सो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, इक्वल टू 1 पे आ क्या रहा है 2, लेकिन हमें गिवन क्या है 2.5। अगर हम 2.5 को 2 पे लेके आएंगे तो ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा, अदरवाइज ये डिसकंटिन्यूस रहेगा। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 बिकॉज लिमिट x अप्रोचेज a fx इज नॉट इक्वल टू fa। ठीक है स्टूडेंट। टू मेक द फंक्शन कंटिन्यूस इट इज रीडिफाइंड एज f1 इज इक्वल टू 2। इसको अगर हम f1 की वैल्यू यहाँ पे 2.5 ना लें और क्या लें 2 लें, तो ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइन।
तो इसको बोलेंगे नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, इफ limit x approaches a plus exist and is equal to fa, then the function is continuous from the right at x is equal to a। ठीक है स्टूडेंट। सेकेंड, limit x approaches a negative, fx is equal to fa and is equal to fa, then the function is continuous from the left at x is equal to a, is a left continuous। if limit x approaches a plus fx, limit x approaches a negative fx exist भी करें and are unequal, तो ये क्या होगा, fx is said to have non removable discontinued। पिछले वाले केस में क्या था, limit x approaches a plus 1 plus और 1 नेगेटिव, fx क्या थे, इक्वल थे। ठीक है स्टूडेंट। अब यहां पे अगर अनइक्वल हो जाएं तो fx क्या होगा, नॉन रिमूवेबल discontinuous at x is equal to a। ठीक है स्टूडेंट। तो दिस इज अ नॉन रिमूवेबल discontinuity of first kind। So algebra of continuous functions, let fx and gx are continuous functions at x is equal to a, then अगर fx and gx आपके दो फंक्शंस हैं, दोनों कॉन्टिन्यूज हैं at x is equal to a पे, अगर तो c ऑफ fx भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूज होगा एट x इक्वल टू a। c कोई कांस्टेंट है, मीन अगर आपका कोई फंक्शन fx कॉन्टिन्यूज है, उसको हम किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो c ऑफ fx फंक्शन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूज होगा। मीन्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से फंक्शन की जो आपका कॉन्टिन्यूज फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूज नहीं होगा, वो कॉन्टिन्यूज ही रहेगा। fx एंड gx दोनों क्या है, कॉन्टिन्यूज फंक्शन, अगर इन दोनों को ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो तो वो कॉन्टिन्यूज ही रहेंगे एट x इज इक्वल टू a पे। मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से कॉन्टिन्यूटी खत्म नहीं होती है। f डॉट g इज कॉन्टिन्यूज, मल्टीप्लाई करने से भी नहीं होती है, कॉन्टिन्यूज ही रहते हैं। f ऑफ g इज कॉन्टिन्यूज, डिवाइड करने से भी कॉन्टिन्यूज ही रहते हैं, लेकिन कंडीशन ये है, ये जो g है डिवाइड हो रहा है ना, ये अब जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बोल चुका हूं 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है स्टूडेंट। सो प्रोवाइडेड g इज नॉट इक्वल टू 0, अदरवाइज ये कॉन्टिन्यूज है। इफ f इज कॉन्टिन्यूज देन मॉड f इज आल्सो कॉन्टिन्यूज। बट स्टूडेंट कन्वर्स इसका उल्टा ट्रू नहीं है कि अगर मॉड आपका मॉड f कॉन्टिन्यूज है तो f भी कॉन्टिन्यूज ही होगा, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपका f कॉन्टिन्यूज है तो उसका मॉडुलस भी कॉन्टिन्यूज होगा। The largest greatest integer function, स्टूडेंट हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं क्लोज ब्रैकेट के साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। ठीक है स्टूडेंट, इसको जिंट भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन is continuous at all points except at integral points. It's a very important point for competitions. Greatest integer function is continuous at all points, means at all real numbers. किनको छोड़ के, इंटीग्रल पॉइंट्स को छोड़ के, इंटीजर्स को छोड़ के। फॉर एग्जांपल हम यही को ले लेते हैं, नंबर फंक्शन ले लेते हैं, ये फंक्शन हमने ले लिया, फॉर एग्जांपल यही ले लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, चलो हम चेक करते हैं फॉर एग्जांपल 2 पे। ठीक है स्टूडेंट, 2 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर एग्जांपल 2.1 का जिंड क्या होगा स्टूडेंट, 2 नेगेटिव पे, 2 नेगेटिव का मतलब है 2 से थोड़ा सा कम 1.9 का जिंड क्या होगा 1। अब ये बराबर नहीं आए, इसका मतलब इंटीग्रल पॉइंट्स पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कॉन्टिन्यूज नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम कोई रियल नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम रियल नंबर ले लेते हैं 2.5। ठीक है स्टूडेंट, 2.5 जिंट 2.5 का प्लस क्या होगा स्टूडेंट, 2.5 का प्लस समझ लो 2.6 का जिंट क्या होगा 2। 2.5 से थोड़ा सा कम 2.5 नेगेटिव, उसका क्या होगा
उसका भी 2, 2.5 से कम थोड़ा सा 2.4, 2.4 का क्या हो गया 2, और लिमिट x इक्वल टू 2.5, 2.5 का जेंट भी क्या होगा 2, तीनों क्या आ गए बराबर, एडजस्ट कर गया। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूज at integral points and is very important question for your competitions. So discontinues at integers, ठीक है स्टूडेंट को, क्या ग्राफ में क्या आ गया है जंप, क्या आ गया है जंप। नेक्स्ट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x माइनस जिंट ऑफ x, और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं करली ब्रैकेट्स के साथ। कौन सा है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, कौन सा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज कॉन्टिन्यूज एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट एट इंटीग्रल पॉइंट्स। अब स्टूडेंट अगर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही कॉन्टिन्यूज नहीं है तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x वो कॉन्टिन्यूस कैसे होगा। इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x कॉन्टिन्यूस नहीं है, कहां पे, एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ठीक है स्टूडेंट, जंप आ गया ग्राफ में। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूज ऑन रियल नंबर। सो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा ऑन ऑल रियल नंबर्स। पॉलिनोमियल फंक्शन फॉर एग्जांपल आपका ax रेज टू पावर n, bx रेज टू पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन, ये क्या होंगे कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन ऑल रियल नंबर्स। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन ऑल रियल। तो स्टूडेंट कांस्टेंट फंक्शन तो ऑलवेज कांस्टेंट ही रहेगा, जो मर्जी x की वैल्यू पुट करते रहो तो वो भी क्या है कॉन्टिन्यूस फंक्शन। log x is continuous on real positive real numbers because log x is not defined at 0 and negative values। ठीक है स्टूडेंट, so log x is continuous at all positive real numbers because ग्राफ क्या है continuous ग्राफ है log x का। ठीक है स्टूडेंट, आंसर इसका log x का नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, लेकिन x की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट, और 0 पे भी लॉग आपका डिफाइन नहीं होता है। लॉग मॉड ऑफ x इज कॉन्टिन्यूज ऑन ऑल रियल एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 का मॉड, सॉरी 0 लॉग ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। सो मॉड आ गया। अब मॉड क्या होगा, अगर आप कोई नेगेटिव वैल्यूज भी पुट करते हो x में तो मॉड है तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और लॉग ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स डिफाइन है। इसका मतलब लॉग ऑफ मॉड x इज कॉन्टिन्यूस ऑन ऑल रियल एक्सेप्ट 0 बिकॉज लॉग 0 इज नॉट डिफाइंड। ये देखिए कॉन्टिन्यूस ग्राफ है लॉग ऑफ मॉड x का, चाहे आप x पॉजिटिव पुट करो अब चाहे नेगेटिव पुट करो। ठीक है स्टूडेंट, तो वो ये कौन सा आ गया फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम और नेक्स्ट पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।